Is there any possibility, Siddharth, that we can do some recording or something which we can, which are the remaining students can benefit of? Ma'am, I've already put it to recording. Okay, okay, sir. Yes. Shall we begin, ma'am? Yes, yes, you can. Gaurav, please start. Good afternoon, everyone. It gives me an immense pleasure to welcome all the attendees to today's workshop, Gen AI for Gen Z, organized by Viksit Bharat Secretariat and IQAC in collaboration with Arthavishti, the Economic Society. We are privileged to have with us Mr. Siddharth Rathod, an esteemed assistant professor from the Department of Economics at Mata Sundari College for Women, University of Delhi, as a resource person for this session. With his expertise and profound knowledge in the field of artificial intelligence and its application, I am confident that this workshop will be transformative learning experience for all of us. Without further ado, I would like to invite Mr. Siddharth Rathod to lead us into this exciting exploration of generative AI for Gen Z. Over to you, sir. All right. I hope I'm audible. All right. Great. Yes, sir, you are. Great. So, folks, what we are going to do today is the session on generative AI. And I'll be bilingual so that सबको समझ में आ जाए and बहुत basic चीज़ें हैं that you need to, all of you need to understand when it comes to AI. Now, when we talk about सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि generative AI है क्या. Now, this is something related to that. It will, when you give the machine some kind of prompt, it will generate some text for you, some video for you, whatever. So it's kind of a conversational artificial intelligence models that have been created. तो अब इसमें बहुत सारे तरीके हैं जो आप यूज़, बहुत सारे टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो. मोस्ट ऑफ दी टूल्स बैक एंड से कोई ना कोई एक मॉडल यूज़ करेंगे. विल टॉक अबाउट व्हाट दीज मॉडल्स आर, कि क्या क्या मॉडल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो. बहुत सारे फ्री भी हैं, बहुत सारे पेड भी हैं. एंड वी विल सी कि आपकी एजुकेशन की जर्नी में ये कौन कौन से टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो. कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आपने यूज़ करे होंगे. आई एम 100% श्योर दैट यू वुड हैव यूज थिंग्स लाइक चैट जीपीटी फॉर योर असाइनमेंट्स एंड फॉर योर टेस्ट. ये सारे आपने यूज़ करे होंगे, बट आपने उनको ऑप्टिमाइज़ नहीं कभी करा होगा कि इनको ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं. आई शो यू मोर टूल्स जो आप यूज़ कर सकते हो फॉर योर डेली लाइफ. एंड देन आई विल ऑल्सो शो यू मिस यूज़ ऑफ दीज टूल्स एज वेल. मैं आपको एक दो ट्रिक्स दिखाऊंगा जिसमें मैं दिखाऊंगा कि आई हैव बीन किडनैप्ड एंड मेरी ही वॉइस के अंदर एक किडनैपर जो है वो वॉइस का मेरा सैम्पल लिया है, उससे कुछ भी कहलवा देगा एंड वो आगे आगे किसी को भी भेज देगा. सो मिस यूज़ ऑफ ए आई ऑल्सो यू विल सी. आपने, यू माइट हैव हर्ड अबाउट डीप फेक्स. तो आज की डेट में डीप फेक बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है. आप 10 मिनट में किसी का भी डीप फेक बना सकते हैं. So you need to be very careful with respect to all these tools. And for teachers, those of who are there, this is absolutely necessary because हम Gen Z को पढ़ा रहे हैं. Gen Z ये tools use कर रहे हैं and we should know how to use these tools which ease our own effort. Whether it is for evaluation or for teaching or giving notes. बहुत सारे टूल्स हैं जो हम यूज़ करेंगे. लेट अस स्टार्ट विद सम बेसिक टूल्स. मैं कोशिश करूँगा कि 1 घंटे के अंदर रैप अप कर लूँ. व्हाट आई वांट इज़, आई नो दिस इज़ अ वर्कशॉप वेयर यू कैन ट्राई साइमल्टेनियसली, बट इंस्टेड ऑफ ट्राइंग इट साइमल्टेनियसली यू कैन जस्ट नोट डाउन के कौन कौन से टूल्स हैं जो आप कर सकते हो. एंड देन मूविंग फॉरवर्ड व्हाट वी कैन हैव इज़ वी कैन हैव लेटर ऑन वन वर्कशॉप ऑन वन टूल इटसेल्फ. So that then I can teach you कि अच्छा ये टूल पूरा प्रॉपरली यूज़ कैसे करते हैं. So this is how we are going to go about. We are going to see at least 10-12 tools today. जो शुरू के टूल्स हैं वो आपके एजुकेशनल पर्पज़ से बहुत अच्छा है. कुछ टूल्स मैं आपको मिसयूज़ के भी बताऊंगा क्योंकि जहाँ यूज़ है वहाँ मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा आप कर सकते हो चीज़ों को. सो वीडियो क्रिएशंस एंड क्या कहते हैं, ऑडियो क्रिएशन एंड फॉर स्टडिंग एज वेल. ठीक है. सो लेट्स एंड बाय द वे दिस इज़ फॉर एनी डोमेन नॉलेज. अगर आप किसी भी एरिया के अंदर हो, आप उस एरिया के अंदर ये टूल यूज़ कर सकते हो. एंड आई कीप सेइंग दिस, दी जो आपका एजुकेशन सिस्टम है आज से 10 साल बाद बिल्कुल चेंज हो चुका होगा. मेरे पर्सनल उसके हिसाब से माई पर्सनल असेसमेंट इज़ दैट द नीड फॉर फॉर्मल एजुकेशन विल कम्प्लीटली क्लोज डाउन नेक्स्ट 10 years. यू विल हैव कम्प्लीटली AI बेस्ड टूल्स जो आपको हर फील्ड में आपको
हेल्प कर सकते हैं. सो दिस इज़ द न्यू रेवोल्यूशन दैट वी आर गोइंग टू सी. दीज आर जस्ट द बेसिक स्टेप्स. अगर आप कुछ आप सोच के देखिए कि आज से 15 साल पहले आप मोबाइल फ़ोन किस तरीके का यूज़ करते थे, आज आप किस तरीके का यूज़ करते हो. दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंसेप्शन ऑफ AI. और आप 10 साल बाद देखिए कि ये कहाँ तक जा चुकी होगी. और ये सिर्फ लास्ट 2 साल में जो मेजर डेवलपमेंट्स हुआ हम उसके बात कर रहे हैं. सो लेट्स सी, let's I'll just share my screen and I'll just close my video so that the bandwidth is not consumed, and then we'll go about it. Give me 1 second. And if you have any questions, you can simultaneously post on the chat box. I'm there on 3 screens right now, so I can see whatever you want to say. I can just see on the chat bot as well. Now let me just share. So this screen must be something which is very relatable to you. एंड सबसे पहले मैं आपको चैट GPT का स्क्रीन दिखा रहा हूँ ये. एंड दिस इज़ समथिंग दैट आपने सबने देखा होगा, with one difference कि what I'm using is a paid version of chat GPT. This is chat GPT 4o, which is the 4 Omni वर्जन. उसके अलावा कैनवस वर्जन है. जो लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं दे कैन एक्चुअली यूज़ 4o विद कैनवस एंड राइटिंग कोड. अगर आप पाइथन का कोड लिख रहे हो तो आई मीन देयर इज़ नो बेटर टूल. कोई भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, यू कैन जस्ट रिफाइन योर कोड विद दिस. यू कैन इन फैक्ट बिल्ड एवरीथिंग विद दिस. एंड देन आई ऑल्सो शो यू क्लॉड एंड परप्लेक्सिटी जो ये सारे काम कर सकता है. Then there is another model which is one mini which also does the same work, and I'm also going to show you free models as well. ठीक है, ये तो पेड वर्जन है. आपको अनपेड वर्जन भी मैं आपको दिखाऊंगा. Now all of you know कि कैसे आपको इस चीज़ के ऊपर काम करना होता है, but what I'm going to show you is something very different if you have the paid version. Now what I have done is I have for my students what I have done is I have created these bots. ठीक है, अब बॉट कैसे बना सकते हैं? वंस यू हैव से अ कस्टमाइज्ड GPT. तो अगर आपके पास पेड वर्जन है तो यू कैन कस्टमाइज थिंग्स एज वेल. एंड कस्टमाइज आप अपना GPT कर सकते हो किस तरीके से. फॉर एग्जांपल मैं अपना एक GPT कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ विच विल बी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. सपोज़ मैं से हिस्ट्री पढ़ता हूँ, या से मैं जोग्राफी पढ़ता हूँ, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ता हूँ, या कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मेरा न्यूज़पेपर का भी वो है. इस केस में जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ. अब माइक्रो इकोनॉमिक्स कई एंगल से एक एंशिएंट हिस्ट्री का भी हमारे पास है. तो एज आई टोल्ड यू कि ये किसी भी डोमेन में काम कर सकता है, किसी भी फील्ड में काम कर सकता है, इररिस्पेक्टिव आप किस डोमेन्स किस फील्ड से आप आ रहे हो. नाउ लेट्स से कि कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मेरे पास ये बॉट है. मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आए जो कहते हैं क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ इसीलिए स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ें UPSC के लिए और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम विच इंक्लूड्स ऑल ऑफ योर ग्रेजुएशन कोर्सेज एज वेल, उसके लिए कैसे पढ़ें. तो मैंने कहा कि चलो मैं आपके लिए एक बॉट बना देता हूँ. अब वो बॉट कितना सिंपल है बनाना कि मैं गया और आई शो यू हाउ टू मेक अ बॉट एज वेल. ना अब बॉट में क्या है, बॉट में जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स का वैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी बना सकते. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने कहा कि व्हाट आई विल डू इज़ उसका बॉट का मैंने नाम दे दिया कि बॉट बनाना है, उसका नाम यहाँ रखा. फिर उसके बाद रखा कि उसका डिस्क्रिप्शन क्या है उस बॉट का. एंड देन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला इंस्ट्रक्शन वाला. दिस इज़ बेसिकली व्हाट इज़ कॉल्ड एज प्रॉम्प्ट. मैं आपको प्रॉम्प्ट करना भी सिखाऊंगा GPT में, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट नो कि प्रॉम्प्ट भी कैसे करते हैं. एंड आपको बहुत एफिशिएंट प्रॉम्प्ट मेकिंग सिखाऊंगा. तो मैंने उसको बोला कि यू आर एन एक्सपर्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, आई विल गिव यू मैक्रो इकोनॉमिक टेक्स्ट PDF एंड यू कैन एक्सट्रैक्ट वट एवर सोर्सेज दैट यू वांट टू डू. एंड उसके बाद व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दैट टेक्स्ट, किस चीज़ के लिए. फिर मैंने उसको गोल दिया कि देखो UPSC इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के बच्चे हैं, IAS के बच्चे हैं, RBI के बच्चे हैं, UGC नेट के बच्चे हैं. एंड योर वर्क विल बी स्पेसिफिक लाइक समराइजिंग, एक्सप्लेन, इंडियन एग्जाम्पल्स, MCQ, ऑल ऑफ दिस वर्क. और मैंने उसको कहा और उसके बाद मैंने जो नॉलेज बेस है उसमें नॉलेज बेस में उसको सारी की सारी किताबें भी दे दी. एंड नाउ आई कैन जस्ट आस्क इट टू डू एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू मैक्रो इकोनॉमिक्स. फॉर एग्जाम्पल आई आस्क इट टू एक्सप्लेन मी ग्रीन GDP. नाउ व्हाट इट विल डू इज ये अपने ये सारे टेक्स्ट को भी ढूंढेगा. ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, सर्चिंग माई नॉलेज. उसमें वो वेब सर्च भी कर सकता है, कोड भी कर सकता है, इमेज भी जनरेट कर सकता है, बट अभी इमेज जनरेशन और उससे काम नहीं है. सो इट विल देन गिव मी ऑल द इंफॉर्मेशन दैट आई नीड. एंड वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आएगा और इन टेक्स्ट को साथ में पार्स करता हुआ आएगा. So that is how you get very efficient. I mean in terms of note making, in terms of whatever you want. Now
एज अ टीचर सपोज मुझे कोई न्यूमेरिकल क्रिएट करना है, MCQ क्रिएट करना है, सो आई से क्रिएट से 10 MCQs on the concept of money multiplier. And spellings, don't worry about the spellings, it understands what is needed, and it can then create these multiple MCQs. And not just that, you can also refine them. Suppose अभी मैं आपको next prompt में बोलूँगा कि मुझे UPSC स्टाइल चाहिए और टफ चाहिए, UGC नेट चाहिए और टफ चाहिए. सपोज आपके पास यहाँ पर PYQs दे रखे हैं आपने किसी भी पेपर के, तो आप यहाँ पर PYQs भी अपलोड कर दो. सो वॉट यू हैव डन इज यू हैव कन्वर्टेड GPT इनटू योर पर्सनल ट्यूटर फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. दिस इज़ हाउ ये जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपके लर्निंग एस्पेक्ट में बहुत हेल्पफुल होगा. दिस इज़ जस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट. मैं आपको बहुत बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ. अभी तो मैं आपको इसको कन्वर्ट करवा दूंगा इसको इनटू पॉडकास्ट एज वेल. So this is, it gave me all the questions that I want. It will give me answers as well. It will give me explanations of answers as well. So whatever I want to do, all of this is available. But एक चीज़ ध्यान में रखनी है यहाँ पर, अभी मैं प्रॉम्प्ट पे आएगा, एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप एक GPT से बहुत ज़्यादा काम करवाओगे, इट विल एंड अप कन्फ्यूजिंग इट सेल्फ, एंड वो आपको टेक्स्ट नहीं देगा अच्छे से. तो इसीलिए आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक जब आप GPTs बनाते हो तो इट शुड बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक. इट्स नॉलेज, ऑफ कोर्स इट कैन गिव यू एनीथिंग, बट जितना आप उसका नॉलेज बेस एज एन एक्सपर्ट रखोगे उस एरिया का, उतना ज़्यादा आपको एफिशिएंटली वो आंसर करेगा. एंड द अदर थिंग इज कि ऑलवेज बी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग GPTs, इट इज़ बाउंड टू गिव यू रॉन्ग आंसर्स एज वेल. तो आपको एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करना है विद रिस्पेक्ट टू your answering. There are a lot of other settings which I'm not getting into. Again, as I told you कि अगर इसके ऊपर मैं क्लास लूँ तो मैं 3 घंटे की सिर्फ GPT पे क्लास ले सकता हूँ, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसका प्लेग्राउंड क्या है, इसकी टेम्परेचर सेटिंग्स क्या हैं. तो वो सेटिंग्स भी चेंज करके मैं अपना आउटपुट को और ज़्यादा इमेजिनेटिव बना सकता हूँ या और ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव बना सकता हूँ. सो वो प्लेग्राउंड है जहाँ पर आप मॉडल के साथ आप प्ले कर सकते हो. बट लेट्स नॉट गेट इन टू ऑल दैट टेक्निकलिटी. नाउ लेट्स गो इनटू कि सपोज आपके पास नहीं है, आप में से किसी के पास भी पेड वर्जन नहीं है, आपके पास फ्री वर्जन है. बट फ्री वर्जन के अंदर भी एक पॉइंट आता है कि आपको यू नीड टू बी एफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू कि कैसा प्रॉम्प्ट होना चाहिए. जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा उतना ही अच्छा आपको आंसर मिलेगा. जितना ख़राब आपका प्रॉम्प्ट होगा उतना ही ख़राब आपका हुआ होगा. तो दैट मीन्स आपके प्रॉम्प्ट अच्छे होने चाहिए. बट the idea that I kind of came up with, and I listened to this on YouTube and on Instagram as well, is that कि why not give the machine to give me a prompt. Basically मैं चैट GPT को ही क्यों ना बोलूँ कि मेरे लिए एक अच्छा prompt बना के दे दे. Now so basically it's kind of a thing कि मैं GPT को बोल रहा हूँ कि मुझे prompt बना के दे और मैं वही prompt यूज़ करके फिर आगे क्वेश्चन पूछूंगा. So अब क्या करोगे, what you can do is you can write a prompt and then say you, और मैं कहता हूँ किसी भी फील्ड में I am a student of किस बैकग्राउंड के बच्चे, anyone किसी कोई बैकग्राउंड बताओ, मुझे कोई भी बैकग्राउंड बताओ जिससे आप हो ना उस बैकग्राउंड. उज़मा मैम का नाम लिखा हुआ है, ठीक है. उज़मा मैम इज़ फ्रॉम एनवायरनमेंट. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ. उज़मा मैम क्लास में सेशन में है क्या? इकोनॉमिक्स तो मैं बहुत सारे बता रहा हूँ. हाँ उज़मा मैडम है. चलो उज़मा मैम के उसका देखते हैं. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है. नाउ एंड देन आई विश टू स्टडी द इशू ऑफ say climate change. Now I want you to अब उसके बाद उसको बोलो कि I want you to write a prompt, ठीक है. शिफ्ट एंड एंटर. ना वो मैनेज मेमोरीज, उसने वो मेमोरी अपडेट कर दी है. बट लेट मी आई एम अ स्टूडेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस टू स्टडी द concept of say climate change. Help me write a prompt for this and ask questions to optimize the prompt. अब मैंने उसको बेसिकली बोल दिया कि मुझे एनवायरनमेंट साइंस में पढ़ता हूँ, मुझे कंसेप्ट क्लाइमेट चेंज का पढ़ना है.
अब मुझे पता ही नहीं है कि क्या है, तो नाउ अब वो मुझसे प्रॉम्प्ट के बारे में पूछेगा कि प्रॉम्प्ट किस चीज़ के ऊपर करना है. सो इट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ दिस एंड कॉजेज एंड इफेक्ट्स, ये सारे ये भी आप प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हो. एंड देन अगर आपको किसी एरिया के लिए करना है, सपोज आपको यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए करना है, तो आप वो भी दे सकते हो. डू यू वांट दी पर्सपेक्टिव टू बी फोकस्ड ऑन इंडिया? सपोज आई वांट द फोकस टू बी ऑन इंडिया. ठीक है, तो नाउ इट विल रिफाइन मी द प्रॉम्प्ट. सो उसने इस तरीके से मुझे प्रॉम्प्ट दे दिया. तो आप अपने हिसाब से यू कैन देन इंजीनियर की मुझे प्रॉम्प्ट कैसा करना है, और उस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके, अब जैसे मुझे अगर मुझे लग गया कि मुझे यही प्रॉम्प्ट यूज़ करना है, अब मशीन ने ही मुझे प्रॉम्प्ट दिया, अब मैं इसको फाइनली एंटर कर दूंगा एंड नाउ इट विल गिव मी ऑल द थिंग्स दैट आई नीड. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ योर आई मीन नॉलेज इन टर्म्स ऑफ द मशीन की नॉलेज यूज़ करके, उसी से आपने प्रॉम्प्ट ले लिया और उसी को यूज़ करके आपने अपना आंसर वगैरह जो भी आपको चाहिए था वो आपने बनवा लिया. नाउ दिस इज़ वन थिंग दैट यू कैन यूज़. द सेम थिंग बाय द वे, ये अगर आपको वेब सर्च करना है, सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे वेब सर्च करना है साइमल्टेनियसली, तो यहाँ पर आज की डेट में वेब सर्च करने का भी ऑप्शन है कि जो भी आप सर्च करोगे वो वेब से उठाना शुरू करेगा और आपको उसके लिंक्स भी देगा. दिस इज़ बेसिकली फ्रॉम परप्लेक्सिटी इज़ ऑल्सो अ टूल जो सेम चीज़ें यूज़ करता है, और यहीं से वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल अगेन मैं इसको भी बोलता हूँ, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ से नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज. ठीक है, ये आपने मोस्ट सबके पास ये तो होता ही है. पूरे कॉलेज के सारे बच्चे, उज़मा मैम एंड के स्टूडेंट्स तो हैं ही. तो सपोज़ मैं कहता हूँ कि ये मुझे करना है. ठीक है, नाउ एंड आई से कि वो वेब सर्च करना है. ठीक है, ना अब वो वेब तो सर्च करेगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ आया था वेब सर्च, एंड इट विल ऑल्सो स्टार्ट टू गिव यू, what is interesting is it will also start to give you sources here, कि कहाँ से कौन कौन से सोर्सेज उसने उठाए हैं, वो सारे के सारे यहाँ से वो सोर्सेज भी देगा. एंड यू कैन लिंक ऑन दीज, यू कैन क्लिक ऑन दीज सोर्सेज कि अच्छा यहाँ से आपसे सोर्सेज सारे उठाए हुए हैं. सो दिस इज़ हाउ यू कैन ऑल्सो यूज़ GPTs एज वेल. एंड वन थिंग इन विच आई यूज़ GPTs अ लॉट इज़, सपोज मैंने कोई वेबसाइट उठाया और मैंने उस वेबसाइट को कहा कि मुझे ये पेज चाहिए, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ डाल देता हूँ और उसको भी समराइज़ करवा लेता हूँ. सो दैट इज़ वन टूल दैट आई ऑल्सो यूज़. तो ये जो आपके पास टूल है इसका अटैच का, इससे आप बहुत सारी चीज़ें अटैच कर सकते हो. आई थिंक ये सिर्फ पेड वर्जन में है, अनपेड वर्जन में नहीं है. सो GPT को यूज़ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. मोस्ट ऑफ पीपल डू नॉट नो हाउ टू यूज़ GPT. तो यूज़ दिस एंड देन आई विल शो यू कि GPT को यूज़ करके, सपोज़ कोई टीचर आपको कहता है कि हमें प्रेजेंटेशन चाहिए ना. प्रेजेंटेशन का बहुत शौक होता है यूनिवर्सिटीज़ में, प्रेजेंटेशन बनाओ. बट आज की डेट में प्रेजेंटेशन बनाने में विद इन 5 minutes यू कैन मेक द प्रेजेंटेशन वेदर यू आर अ टीचर और स्टूडेंट. नाउ व्हाट आई विल टीच यू इज़, ये तो आपका ये हो गया, बट ऐसे ही सिमिलर पैटर्न पे टूल, देयर इज अनदर टूल बाय एन इंडियन बाय द वे, perplexity.ai, which does the same work. But what is even more beautiful about this thing is कि ये आपको और भी सारी चीज़ें देता है कि आप किस चीज़ के लिए सर्च करना चाह रहे हो. आप अकेडमिक पेपर के लिए, सपोज यू आर राइटिंग एन अकेडमिक पेपर, तो यहाँ पर वो अकेडमिक पेपर से ढूंढना शुरू कर देगा. मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स का काम है तो वो सॉल्विंग ऑफ इक्वेशंस कर देगा. सोशल का या ओपिनियंस का काम है तो वो ट्विटर और इंस्टाग्राम इन सब से आपका डिस्कशन से वो करेगा. वीडियोस उठा सकता है, वीडियोस से सामान उठा सकता है. इट कैन राइट विदाउट सर्चिंग द वेब एज वेल. सो यहाँ पर फोकस बहुत अच्छा है. और इसका एक प्रो वर्जन भी आता है. प्रो वर्जन में आप डेली 3 सर्चेज यूज़ कर सकते हो. बट अगेन दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड आई वुड से दैट you can follow this guy on LinkedIn as well, Srinivas. I'm forgetting his second name. वो रोज़ अपडेट देता है कि what is new. इनफैक्ट आप शॉपिंग करने के लिए भी ये चीज़ यूज़ कर सकते हो. एंड आई विल शो यू रिसेंटली व्हेन आई वाज आउटसाइड दिल्ली, मुझे एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करना था, तो मैंने परप्लेक्सिटी से करा. उसने मुझे डिटेल वाइज पूरी ट्रिप ऑर्गेनाइज करके दे दी कि फर्स्ट डे ये करना चाहिए, सेकंड डे ये करना चाहिए, थर्ड डे ये करना चाहिए, टिकट्स कहाँ से मिलेगी, कौन सी वेबसाइट से आप लॉग इन करोगे, वो पूरा उसने प्लान बना के दे दिया. सो दिस इज़ अगेन हाउ दिस इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक टूल. पेड है. GPT इज़ ऑल्सो 2000 रुपीज़ अ मंथ.
बट हाउ आई यूज़ GPT इज़, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मैं शेयर करता हूँ, एंड मुझे 300 रुपये महीना पड़ता है, बट दिस इज़ टू प्रेशियस अ टूल, जो मुझे लगता है कि 300 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग डील पर मंथ टू बी यूज. परप्लेक्सिटी इज़ अगेन 2000 रुपीज़ अ मंथ, मैं उसका फ्री वर्जन यूज़ करता हूँ. Claude is another tool, Claude.ai. This is being backed by, Claude is backed by Anthropic, which is backed by Amazon. GPT is backed by Microsoft, OpenAI, as you know. And अब इसके अलावा सपोज आप कहते हो कि सो ये सारे काम ये भी कर सकता है, ऑल दिस वर्क वट एवर यू वांट टू डू इज पॉसिबल हेयर एज वेल. नाउ फ्री टूल के बारे में बात करते हैं कि अगर आपको फ्री टूल यूज़ करना है तो आप क्या कर सकते हो. there is a website called as huggingface.code @chat. बेसिकली ये जिनके पीछे जितने भी मॉडल्स हैं वो ट्रांसफॉर्मर मॉडल लगे हुए हैं, तभी उसका एंड जो है, जो आप अगर आप GPT बोलते हो तो T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफॉर्मर्स. तो यू कैन यूज़ दिस फ्री टूल huggingface.code/chat, एंड यहाँ से व्हाट यू कैन ऑल्सो डू इज़ यू कैन पिक अप मॉडल्स. आपको कौन सा मॉडल यूज़ करना है. आज की डेट में वन ऑफ द फास्टेस्ट मॉडल दैट इज़ अवेलेबल इज़ नोमोट्रॉन बाय नोमोट्रॉन llama, which is again backed by this has been developed by NVIDIA. NVIDIA is world's biggest company in terms of market cap. अगर आपको पता नहीं हो तो ये दुनिया की सबसे richest कंपनी है, and more than Apple, by the way. Apple comes second. एंड ये मैं मॉडल इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ. आपको कोई और मॉडल यूज़ करना है, आपको मेटा का मॉडल यूज़ करना है जो आपके से अपना व्हाट्सएप खोला हो तो व्हाट्सएप के अंदर ये जो मॉडल लगा हुआ होता है वो ये वाला मॉडल लगा हुआ होता है. अब यू कैन चूज़ दिस मॉडल्स. आई एम चूजिंग दिस पर्टिकुलर मॉडल, एंड यहाँ पर अगेन यू कैन आस्क इट, यू कैन सर्च ऑन वेब इफ़ यू वांट टू डू, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री. whatever you want to do through ChatGPT you can do it here as well, except for the fact that this is a free model. And the beauty for all of this is, मैं आपको प्रोडक्ट्स, अगर कोई कंप्यूटर साइंस है एंड यू आर गुड इनफ इन दैट, व्हाट पीपल डू इज़ कि लोग इन्हीं मॉडल्स को फाइन ट्यून करते हैं और इसी के ऊपर एक नया रैपर लगा के एक नया वो शुरू कर देते हैं, नई ऐप शुरू कर देते हैं. I'll show you that as well. So it is the same thing. like मैंने क्या किया कि से राइस मिल रहा है मार्केट के अंदर कई तरीके के राइस मिल रहे हैं. मैं मार्केट से गया, मैं सस्ता राइस उठा के ले आया, उसको अच्छी सी पैकिंग करी और उस पैकिंग को फिर मैंने अच्छे मार्केट में से खान मार्केट में आके बेच दिया. वही राइस जो से 50 रुपये किलो बिक रहा था या 70 रुपये किलो बिक रहा था, उसी को मैंने 200 रुपये किलो बेचा, क्योंकि मैं खान मार्केट के अंदर बेच रहा हूँ. सो यू जस्ट चेंज द रैपर ऑफ दैट पर्टिकुलर AI, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, उसके ऊपर रैपर आपने चढ़ा दिया. One of the best wrappers that you can use, especially most of you are students, is what I call as Mapify. Why Mapify? और मैं Mapify इतना ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपनी डेली लाइफ के अंदर क्योंकि मेरा पढ़ाने का काम है, एंड पढ़ाने और पढ़ने दोनों के लिए Mapify इज़ अ वेरी गुड टूल. येस, इट्स अ पेड टूल. इसके फ्री ऑल्टरनेटिव्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं. अभी आई मेक अ ग्रुप, उस ग्रुप में मैं आपको बहुत सारे टूल्स और ऐड करता रहूँगा. आई जस्ट आस्क हनी टू मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप, एंड उसके अंदर बहुत सारे टूल्स जो हैं आई विल कीप सेंडिंग यू दीज टूल्स यू कैन ट्राई ऑन एवरी डे. देयर आर न्यू टूल्स यू हैव टू ट्राई. जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा. आई विल शो यू द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर. अगेन अ पेड सॉफ्टवेयर दैट इज़ देयर, बट अगेन मैं इसको शेयर करता हूँ. मुझे ये सॉफ्टवेयर आई थिंक 150 रुपये पर मंथ पड़ता है. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड एब्सोल्युटली आई वुड से दिस इज़ अ वर्थ सॉफ्टवेयर. नाउ सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे एक चैप्टर पढ़ना है, ठीक है. आई वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू मैप. अब वो मैप किस किस चीज़ों का कर सकता है? इनफैक्ट यूट्यूब के वीडियोस का भी कर सकता है. अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यूट्यूब के वीडियोस का भी कैसे करेगा. सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास डॉक्यूमेंट है, पावर पॉइंट है, स्प्रेडशीट है, आपके पास जो भी आप उसको ले आओ, ईमेल है, वो सबको भी कर देगा, वीडियो फाइल है, सब कुछ कर देता है. सेम मेरे पास एक PDF है, ठीक है. मुझे बच्चों को एक PDF से पढ़ाना था, ठीक है. अब वो मुझे कहता है कि PDF को आप मैपिफाई कर सकते हो और 1000 क्रेडिट देता है. मैं अभी पूरे महीने में 43 क्रेडिट यूज़ कर पाया हूँ, जबकि हम 5 लोग यूज़ कर रहे हैं इसको. ना इसका भी जो मॉडल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो इंस्टेंट कर रहा हूँ. देयर इज़ अ पावरफुल मॉडल जो और थोड़ा एक्सपेंसिव है. नेक्स्ट मंथ तक आई विल प्रॉब्ली बाय दैट मॉडल एज वेल. ना अब इसमें मैंने क्या किया, आपके पास कोई भी चैप्टर था, मैं अब जैसे यहाँ पर देख रहा हूँ कि मेरे पास इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से आपने कोई भी चैप्टर ले लिया, डू इट फॉर माई स्टूडेंट्स इटसेल्फ. नाउ दिस इज़ अ चैप्टर दैट आई हैव टेकन, ठीक है. अगेन पूरी किताब मत दे देना उसको. अगर किताब दोगे इट विल बी टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर इट टू प्रोसेस,
ठीक है, एंड आई जस्ट सेड ओपन दिस, यहाँ पर वो अपलोड हो गई वो फाइल, एंड आई जस्ट आस्क टू मैपिफाई इट। देखो विद इन सेकेंड्स कैसे मैपिफाई करेगा वो उसका एक फ्लो चार्ट टाइप बना देगा, विच विल बी टाइप ऑफ, जिसको मैं चीट नोट्स टाइप जिसको बोलते हैं, जिसको आप फर्रा बोलते हो, वो फर्रा की तरह वो उसको बना देगा। Please don't use in exams. यस, अगर एग्जाम में यूज़ करो एटलीस्ट मेरा नाम मत लेना, बाकी आप पढ़ने के लिए कुछ भी यूज़ करो, बट दिस इज गोइंग टू बी इनक्रेडिबली हेल्पफुल, इट्स टेकिंग सम टाइम। एग्जाम में चैट जीपीटी तो यूज हो ही जाता है। हाँ मैडम फिर ये चैट जीपीटी से बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है। बच्चों के लिए वही काफी होता है आंसर लिखने के लिए। So पढ़ा था एक बच्चे को मैंने फोन के साथ। so this is the it has given me the entire chapter, और वो पूरा चैप्टर जो है वो उसने समरी के फॉर्म में दे दिया है। ना वन प्रॉब्लम विद दिस, देखो जो बच्चे हिस्ट्री के हैं, जो बच्चे से पॉलिटिकल साइंस के हैं, जो बच्चे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स से जहाँ पर हिंदी से आते हो, हिंदी में भी आई थिंक आई विल शो यू सम टूल्स फॉर हिंदी एज वेल, एंड आई ऑल्सो शो यू टूल्स जहाँ पर आप हिंदी में कन्वर्ट भी कर सकते हो ना इन सबको। सो आप जिस भी बैकग्राउंड से आगे, अगर वो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है, फिलोसफी हो गया, तो ये तो बहुत अच्छा से काम करेगा। बट द प्रॉब्लम कम्स विद इकोनॉमिक्स, विद मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, विद स्टैटिस्टिक्स। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर ग्राफ्स हैं, मैथ्स हैं, यहाँ पर मैपिफाई आपको इतने अच्छे से नहीं बता पाएगा। थ्योरी अच्छे से बता देगा, बट कई बार आपके मैथमेटिकल चीज़ें, ग्राफ्स जो हैं वो नहीं बता पाएगा। एंड सी इट हैज़ समराइज द इंटायर चैप्टर, एंड मैं उसके मैप को मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिस्ट्री यूज़ करते हो, देखो अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो मुझे टाइम लाइन के फॉर्म में चीज़ें चाहिए होती हैं, तो मैं टाइम लाइन देख सकता हूँ। से मुगल्स का जो पूरा बैकग्राउंड है वो कैसा है, वो पूरा मैंने एनालाइज कर लिया। आपको कोई वीडियो मिला और उसने मुगल्स के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, तो आपने वो वीडियो ही पोस्ट कर दिया और वो पूरा टाइमलाइन के हिसाब से आपको पूरा दे देगा। ग्रिड के फॉर्म में हो सकता है, लॉजिक चार्ट के हो सकता है। अभी मैंने माइंड मैप सेलेक्ट करा हुआ है, एंड माइंड मैप में भी आप देन टाइप्स, जैसे मेरा फेवरेट टाइप है, मुझे इस तरीके से बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड इट रन्स लाइक क्लॉकवाइज चलता है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। वेरी हेल्पफुल इन फॉर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एंड देन आप ये टूल ट्राई भी कर सकते हो, आपको फ्री 10 क्रेडिट देता है एक चैप्टर बनाने के लिए। आई थिंक 2-3 क्रेडिट यूज़ करेगा। यू ट्राई इट आउट एंड सी वेदर इट हेल्प्स यू और नॉट। एंड टीचर्स के लिए अगेन वेरी वेरी हेल्पफुल। दिव्या मैडम के लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टूल होगा, उज़मा मैडम के लिए भी बहुत हेल्पफुल टूल होगा। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स अनमैच्ड टूल फॉर टीचिंग। एंड देन द ब्यूटी इज what you can use is you can download this and make presentations out of it. आप इसी को उठा के सीधा GPT को दे सकते हो और फिर उससे और लंबा टेक्स्ट बना सकते हो और एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो। सो 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप आप प्रोसेस बना सकते हो इस पूरे उसको। आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया है वो UPSC और माइलस्टोन वाले बैकग्राउंड से हैं। सो फॉर एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट यू आर टेकिंग, यूज माइंड मैप्स। आई हैव सीन सो मेनी कोचिंग्स डू दिस एज वेल, कि वो कुछ नहीं करते, वो टॉपिक का माइंड मैप बना के दे देते हैं, वो बैकग्राउंड में कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो बैकग्राउंड में ये कर रहे हैं। इट्स अ ईजी टूल टू यूज़। 150 रुपये महीना इज़ नॉट अ बिग अमाउंट फॉर योर प्रेप। सो यूज़ दिस टूल फॉर दिस थिंग। नाउ लेट मी शो यू अनदर टूल। ये आपका माइंड मैप्स हो गया। अच्छा, इसी के अंदर मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि आई गो टू ऑल मैप्स। सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे कोई वीडियो मिला, आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छा कोई वीडियो मिला। let's go to YouTube and search for a video. Say I go to YouTube and YouTube पे मुझे कोई एक वीडियो मिला, एजुकेशन इन इंडिया। किस एरिया में देखना चाहते हो, किस एरिया में आप YouTube पे अगर कोई लेक्चर देखना चाहते हो, किस एरिया में ढूंढना चाहते हो? आई विल जस्ट आस्क यू गाइस फर्स्ट, किसके एजुकेशन, चलो एजुकेशन चलो, ठीक है, ओके। Evolution of Indian education. Let's see if we can find a video on this. I know GPT can tell me great things about it. Say let's say I like this video अच्छा है, वीडियो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, but the only problem is I think this is based out of based on Hindi. See, I think this should be on English. Let me just check. Of education. English language के medium से Western. No, I think this is also. So I think यहाँ तक we don't have any issue. Sugandha, your mic is on. I will, because I need to start with Sudo codes, but I think we don't have substantial time to start with it. So what we do is we'll extend in the next session and start with Sudo codes, and today we'll do this.
Sugandha, your mic is on. So let's हाँ चलो. Yeah, Sugandha is in 2 classes. मैं आपको 2 चीज़ें दिखाता हूँ. सपोज़ ये मेरे पास वीडियो था, आपको 2 टूल्स दिखाऊंगा मैं आपको. मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इसको Ctrl+C लिया एंड आई सेड यूट्यूब. आई वेंट ऑन यूट्यूब और यहाँ पर मैपिफाई के अंदर, और मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा इसी टूल के साथ में. एंड आई आस्क्ड इट टू मैपिफाई. ये यूट्यूब को भी, यूट्यूब का पूरा लेक्चर को वो मैप कर देगा. ठीक है. अगेन इट कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड द टॉपिक मच इन अ मच बेटर वे. ओनली प्रॉब्लम इज it has to be in English. So once this is there, within minutes it is doing the same thing. Now let me show you another very good tool which used to draw flowchart as well. absolutely madam, absolutely. कुछ भी आप कर सकते हो इसके साथ में. फ्लो चार्ट आपको यूज कर, ऑप्शन होगा. सेम यहाँ पर आप बस उसको यहाँ से आप चूज़ कर लो. फॉर्मेट क्या चाहिए आपको, फॉर्मेट आप चूज़ कर सकते हो. यहाँ पर फ्लो चार्ट्स में भी आएगा, लॉजिकल चार्ट्स. You just this is paid only, na? this is paid मैडम, बट कोई बहुत ज़्यादा, बहुत पहले आप फ्री वर्जन ट्राई कर लो. फ्री वर्जन आप ट्राई कर लो आप, और कोई बहुत ज़्यादा Experience, yeah. तो. और 600-700 रुपये का पर मंथ है ये. और मैं कोई भी सॉफ्टवेयर स्टैंड अलोन कभी खरीदता ही नहीं हूँ. मेरे पास इतने स्टूडेंट्स होते हैं जो मेरे साथ खरीदने के लिए रेडी होते हैं, तो मेरे लिए 100-150 रुपये ओवर था. मेरा अपना कैप है कि मैं 700 रुपये महीने से ऊपर बिल्कुल नहीं स्पेंड करूँगा ऑन माई AI टूल्स. नहीं तो मैं तो कितना ही स्पेंड कर लूँ. आई हैव अ सॉफ्टवेयर विच इज़ 40,000 रुपीज़ एन ईयर. तो वो मैं कम्प्लीटली फ्री यूज़ करता हूँ. सो अब इंडियंस हैं, जुगाड़ू तो होना ही चाहिए कि कैसे आप पैसे बचा सकते हो इधर उधर से. सो यू कैन यूज़ दैम. नाउ आई शो यू अनदर थिंग जहाँ पर आप इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो. लेट मी शो यू वन वेरी गुड थिंग. नाउ अब अगर हमें से दिस इज़ द सेम थिंग दैट आई एम डूइंग. दिस इज़ unstuckstudy.com. ये सेम चीज़ मैंने करी हुई है. ठीक है, सेम चीज़ करी हुई है. तो बट ये फ्री में 10 क्रेडिट्स देता है. ये वो 10 क्रेडिट्स देता है. यस, वो मैपिफाई जो है वो 10 क्रेडिट्स देता है. ठीक है, मैं आपको दूसरा टूल फ्री एक और दिखा. वही मैं बता रही थी. हाँ, ये जो है ये आपके लिए एक और टूल है अनस्टक करके. एंड ऑल यू नीड टू डू इज़, जो भी आपका यूट्यूब का वो है टॉपिक है. गिव मी 1 मिनट, जस्ट 1 सेकेंड. मेरे पास बहुत सारी विंडोज़ इस वक्त ओपन पड़ी हुई हैं. सपोज़ मेरा दूसरा सिस्टम एक्चुअली कम्प्लीटली हैंग कर गया है. सपोज़ आई वांट टू नोट्स. अब हमारे पास यूट्यूब का study.new. सपोज़ यही आपका ठीक है. नाउ सपोज़ ये एक वीडियो है एंड मुझे इसी वीडियो का मुझे समरी चाहिए. ठीक है, और मुझे इसके साथ चैट करना है कि कौन से टर्म पे क्या है. मैं इसी के URL के आगे जाऊंगा एंड आई विल राइट study.new/. दिस इज़ ऑल आई नीड टू डू. मुझे सिर्फ study.new और जो भी आपका यूट्यूब का लिंक है उसी पे रहना एंड एंटर कर देना. सी व्हाट दिस विल डू. इट विल टेक मी टू unstuck study and it is creating a chat with the video, and then I'll show you what you can do with this. हाँ, ये आपने कोई बुक रिव्यू देखा, इंग्लिश के स्टूडेंट्स बुक रिव्यू आपने कोई सुना. सो आई जस्ट कॉपीड दिस. आप वो भी कर सकते हो, study.new भी कर सकते हो और यहाँ पर भी डाल सकते हो. उसने मेरा डेली लिमिट अपडेट कर दिया है. समराइज दिस. हाँ, वो आ गया ना. आई से क्रिएट स्टडी नोट आउट ऑफ दिस. मेरे पास वहाँ पेस्टेड है वो चीज़. सी दिस एंड कैन यू सी कि वो साइमल्टेनियसली मुझे ये भी बता रहा है कि कहाँ पर क्या अवेलेबल है. मैं जब टॉपिक के ऊपर जा रहा हूँ तो मुझे वो बता रहा है कि कौन से सेक्शन में उसने क्या क्या बताया हुआ है. इट इज़ देयर एज वेल. एंड अगेन फ्री टूल. उसका ये जो टूल्स हैं सारे आपको कुछ टाइम तक आपको फ्री देंगे, तो दिन में आप 1 या दिन में 2 यूज़ कर सकते हो. ठीक है, एंड आई विल शो यू कम्प्लीटली फ्री टूल एज वेल. ठीक है, सो यू कैन आस्क FAQs बनाने, आप FAQs भी बना सकते हो इससे. यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स आउट ऑफ दिस टूल एज वेल. extremely good for any kind of for any student. ये बहुत ही important tool है जो आप यूज़ कर सकते हो. Then same tool
लेट मी से, सपोज आपके आपके टीचर ने कहा कि नहीं हमें मुझे इस चीज़ के ऊपर से प्रेजेंटेशन बनानी है, ठीक है। प्रेजेंटेशंस का बड़ा काफ़ी ज़्यादा शौक होता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। अब उसमें क्या हुआ है, उसके अंदर देर आर टूल्स लाइक, मैं आपको एक टूल दिखाता हूँ, गामा। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव यूज्ड गामा एज वेल, एंड उसको देखते हैं। हाँ, गामा मेरे पास यहाँ है। एंड अगर आपको लगता है कि ये जो आपके जो टूल्स हैं, आप कह रहे हो कि मेरे पास जो टूल्स हैं वो एक ही ईमेल के ऊपर लिमिटेड है, मैं आपको उसका भी एक क्रैक बता दूंगा कि आप हर 5-10 मिनट के लिए एक ईमेल बना सकते हो, ठीक है। there's a टूल कॉल्ड 5 मिनट ईमेल और 10 मिनट ईमेल। वो आपको इंस्टेंटली ईमेल बना के दे देगा, वो 10 मिनट 15 मिनट आप लॉग इन कर लो और फिर उसको यूज़ करते रहो, ठीक है। अब नाउ दिस टूल इज़ कॉल्ड एज गामा। अ लॉट ऑफ यू माइट हैव यूज दिस टूल। दिस इज़ सॉरी, दिस इज़ फ्रॉम माई, मैंने इस टूल का तो पूरा यूज़ कर लिया है। मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ अपने 40 पॉइंट्स फॉर पर्टिकुलर सेशन। नाउ गामा, व्हाट गामा विल डू इज़ गामा विल मेक यू प्रेजेंटेशंस। नाउ से टीचिंग के लिए मुझे प्रेजेंटेशन बनानी है। प्रेजेंटेशंस कई तरीके की हो सकती हैं, बट मेरे पास टाइम नहीं है। एंड मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ ये टूल जब मुझे पता होता है कि मुझे से 5 घंटे में 6 घंटे में कोई एक लेक्चर लेना है। कई बार मुझे इमीडिएटली आता है कि एक लेक्चर लेना है और मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है उस टाइम पे पीपीटी बनाने के लिए। सो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन यूज़ दिस न्यू क्रिएट। ये आपको क्रिएट करने देगा गामा करके ऐप, जो आपको कहेगा कि यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन पेस्ट इन टेक्स्ट, यू कैन जनरेट, ये आपके अपना जनरेट कर देगा। जैसे मैडम कह रही थी एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, वो अपने आप ही जनरेट कर देगा, अपने आप ही कार्ड जनरेट कर देगा। यू कैन ऑल्सो गिव इट पीपीटी, एग्जिस्टिंग पीपीटीज या स्टफ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपने मटेरियल से करता हूँ। मैंने कुछ वो ढूंढी थी, टेक्स्ट ढूंढा था, ये वाला मेरा टेक्स्ट आ गया मेरे पास, या चैट जीपीटी से मेरे पास टेक्स्ट आया। लेट्स गो टू चैट जीपीटी। आई विल आस्क इट टू क्रिएट 10 स्लाइड्स आउट ऑफ, ठीक है। अब क्लाइमेट चेंज की हमने ये चीज़ ढूंढी थी। नाउ आई एम सेइंग क्रिएट 10 पीपीटी स्लाइड्स आउट ऑफ द अबव टेक्स्ट, ठीक है। 10 इसलिए मैंने बोला है क्योंकि जो फ्री वाला वर्जन है वो आपको 10 स्लाइड्स तक ही देगा। नाउ सी व्हाट इट विल डू, इट विल क्रिएट मी 10 स्लाइड्स आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस। इट्स टेकिंग सम टाइम बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अगर आप ऊपर देखो तो टूल्स कितने सारे खुले पड़े हैं। विल वेट फॉर इट। अगर इफ़ यू डोंट वांट टू वेट फॉर इट देन आई कैन डायरेक्टली, ठीक है, वी डोंट हैव टाइम, आई जस्ट कॉपीड दिस, ठीक है। अब उससे बाय द वे यू कैन मेक अ वेब पेज आउट ऑफ इट, यू कैन मेक अ डॉक्यूमेंट आउट ऑफ इट, वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू, ठीक है। ट्रेडिशनल आपको करना है, पेज स्टाइल टॉल करना है, मैंने कहा प्रेजेंटेशन मुझे चाहिए, उसने कहा ठीक है, वो कन्फिगर करेगा प्रॉम्प्ट को। एंड दिस इज़ द ब्यूटी, यू वांट टू कंडेंस दिस, ठीक है। आई एम ऑलमोस्ट आउट ऑफ कार्ड, इट्स ओके। you want to condense this, you want to generate, you want to preserve this, I can also preserve this. You want card by card information, you want free form information। ये आपको बता रहा है कि पहले वाली टेक्स्ट पे ही आएगा, पहले वाले उस पे आएगा, सेकंड वाले पे ही आएगा, थर्ड वाले पे ही आएगा, ये आपको सारे वो दे रहा है, ठीक है। तो यू कैन ऐड एंड सबट्रैक्ट इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग। इमेजेस कैसे लेगा, प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट मैंने उसको कर दिया कि ट्रेडिशनल फॉर्मेट दे ले। and what else English and other languages as well. If you want to choose other languages, it can take other languages as well, and I say continue. Now comes the part जहाँ पर वो मुझे बोलेगा कि किस तरीके से चाहिए। Now if you see any professional PPT, you will always see them in black color. I hate presentations जो white color की होती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें कोई effort ही नहीं गया है। सो आप जब भी देखोगे प्रोफेशनल, अगर आप जैसे आपने प्रोफेशनल क्लिक किया, देखो आपको बहुत सारी ब्लैक प्रेजेंटेशंस मिलेगी। मैं प्रोफेशनल और डार्क थीम में यूजुअली प्रेजेंट करता हूँ, एंड देन दिस इज़ इलेक्ट्रिक इज़ यूजुअली माय फेवरेट थीम। तो इस तरीके से अब आपकी प्रेजेंटेशन आएगी, तो आप देखो कितना अच्छे से आपका वो आएगा। एंड आई जस्ट से जनरेट, सी हाउ क्विकली दिस विल जनरेट इट फॉर मी। There are other tools. There is another tool called tome.ai. You can use tome.ai as well. And again you can change all these pictures, जो भी पिक्चर्स आने वाली हैं सारी की सारी पिक्चर्स आप चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखो, it has given me a good picture, and you can change and specify जो आपको चेंज करना है, जो आपको पिक्चर चाहिए, आपको टेक्स्ट चाहिए, all of these are editable, everything is editable here।
एंड टिपिकली व्हाट आई डू इज़ कि मैं इसको इसके साथ मैं आई टेक हेल्प ऑफ कैनवा. लॉट ऑफ यू यूज़ कैनवा फॉर योर वर्क. तो मैं कैनवा को साइमल्टेनियसली यूज़ कर लेता हूँ एंड कैनवा और इसको दोनों को इंटीग्रेट कर देता हूँ सो दैट वो अपने आप में भी अच्छी लगे और मेरे पास कैनवा की पिक्चर्स भी हैं साथ में. सो अगेन अगर मैं ये प्रेजेंट करूँ सो इट इज़ मतलब अनरियल कि मैं मतलब अगर मेरे पास 10-15 मिनट है और मेरे पास वो मुझे करना है तो मैं इससे अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं बना सकता था. ठीक है, जो मुझे समराइज़ करके मिल गई. सो कैनवा को इंटीग्रेट कैसे करोगे, इसको पहले डाउनलोड करोगे दीक्षा, और डाउनलोड करने के बाद इसको एज अ पीपीटी डाउनलोड करोगे और फिर उसके बाद कैनवा से पिक्चर्स उठा के इसके अंदर कैनवा से पिक्चर्स डालोगे और या वीडियोस डालोगे और फिर वो पीपीटी के ऊपर लगाओगे. सो दैट इज़ समथिंग दैट आई डू. आई शो यू वन स्मॉल प्रेजेंटेशन ऑफ माइंड और उससे आपको दिख जाएगा कि ये कैसे यूज है. मैं आपको 2 प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा. एक जो कम्प्लीटली मैंने पीपीटी पे बनाई हुई है, दैट इज़ उसके लिए प्रॉपर आपको 4-5 क्लासेस चाहिए मेरे से, बट मैं आपको इसकी दिखा देता हूँ. से फाइनेंस कमीशन. सी देयर वाज अ टॉपिक दैट आई हैड टू टेक एंड मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था. देयर इज एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड IIPA जिसके लिए मुझे टॉपिक पढ़ाना था. ठीक है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था उसको लेने का. एंड मैंने क्या किया, मैंने इससे बनवाया और उसको पूरा एडिट किया. जो मुझे सामान चाहिए था वो मैंने एडिट किया, सब कुछ किया. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे कुछ पर्सनलाइजेशन चीज़ें डालनी थी. तो व्हाट आई हैव डन इज़ कि इफ़ यू सी दिस प्रेजेंटेशन यू विल सी कि यहाँ पर दिस इज़ अ मोशन वीडियो दैट इज़ गोइंग ऑन जो मैंने इसके ऊपर डाली हुई है ऑन दी पावर पॉइंट. ठीक है, तो मैंने 2 चीज़ों को इंटीग्रेट किया हुआ है और ये देखो ये पीपीटी आई हुई है और उसके ऊपर ये जो मूव कर रहा है ये ओरिजिनल थी, उसके ऊपर मैंने इंटीग्रेट करके ये डाल दिया. सो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन डू. बट यू कैन यूज़ पावर पॉइंट अपने आप में भी बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये टूल यूज़ करो. बट पूरी दुनिया ये टूल यूज़ कर सकती है. अगर आप यूज़ कर सकते हो तो मैं भी यूज़ कर सकता हूँ. ठीक है, अगर ऐसा है, अगर आप उस तरीके से क्या कहते हैं मेरे साथ compete करोगे तो फिर मेरे पास एक और टूल है और which is completely based on PowerPoint and then something that I've completely seen from वीडियोस. तो ये क्या है, अशोका यूनिवर्सिटी के ऊपर आई वॉज टेकिंग अ लेक्चर. नाउ दिस इज़ कोई AI नहीं चल रहा, बट पीछे से आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ पावर पॉइंट बिहाइंड इट. ठीक है, पावर पॉइंट. अब ये क्या है, ये कैनवा से आके वीडियो आ गया. आई विल शो यू कि ये वीडियोस कैसे आप जनरेट कर सकते हो, फ्री में भी जनरेट कर सकते हो. एंड देन इस केस में मैंने कैनवा को इंटीग्रेट करा हुआ है पावर पॉइंट से. सो द मोमेंट एवरी पॉइंट इज़ नाउ क्लिकेबल हेयर. ठीक है, एंड देन you can where you can use this thing PowerPoints is that PowerPoints के अंदर बहुत सारे tools होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो. I'm not going into nitty gritties of PowerPoint क्योंकि ये PowerPoint का वो टॉपिक नहीं है हमारा आज का, but I'm just showing you कि you can use PowerPoint for a lot of things. and जैसे ये है, so you can use this through something like this highlight करके. एंड ये सारे टूल्स आप कुछ AI से ले सकते हो, कुछ आप अपना पावर पॉइंट्स में इंटीग्रेट कर सकते हो. सो दिस इज़ से पावर पॉइंट्स. नाउ लेट मी गो टू अनदर टूल which is going to be very helpful for all of you, which is called as Notebook LM. Notebook LM, and then I will show you 2 more tools. Yes, this tool is called as Notebook LM. अब नोटबुक LM क्या है, ये जैसे हमने बात करी कि एक ChatGPT है जो ओपन AI का है, परप्लेक्सिटी है जो स्टैंड अलोन उसका है, क्लॉड है जो एंथ्रोपिक वालों का है, बैक बाय अमेजोन. एंड देन जब सारे compete कर रहे हैं तो गूगल भी compete करेगा. गूगल का जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जिसको हम मल्टी मॉडल बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज Gemini. But the problem with Gemini is it is not able to keep pace with say GPT or Claude. They're doing really well. Okay. Now what we can do is we can use at the back end we can use this thing Notebook LM. अब नोटबुक LM क्या करेगा, आपके लिए एक नोटबुक बना देगा फॉर ईच पर्टिकुलर सब्जेक्ट. जैसे आप कॉपी अपना क्या करते हो, जब आप क्लास में आते हो तो आप हर सब्जेक्ट का एक रजिस्टर कैरी, टिपिकली आप हर सब्जेक्ट का एक रजिस्टर कैरी करते हो अनटिल अनलेस आप मेरे जैसे स्टूडेंट हो जिन्होंने 3 साल एक ही रजिस्टर कैरी किया था. तो बट अगर ऐसा क्वेश्चनेबल आपका बैकग्राउंड नहीं है तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट नोटबुक्स फॉर ईच पर्टिकुलर टॉपिक. से यू स्टडिंग से मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपने क्या किया, आपने मॉडर्न हिस्ट्री की एक नोटबुक क्रिएट करी.
आपने उसका नाम दिया कि दिस इज़ माई मॉडर्न नोटबुक हिस्ट्री, एंड उसके अंदर द ब्यूटी इज़ आप उसको कुछ भी दे सकते हो। आप उसको वेबसाइट दे दो, आप उसको यूट्यूब का लिंक दे दो, आप उसको गूगल शीट दे दो, जो अपने टीचर ने आपका सामान दिया वो दे दो, आपके पास रीडिंग्स हैं, आपके पास बुक है, वो सारा कुछ आप यहाँ पर अपलोड करना शुरू करो। एंड से मैंने लेट मी शो इट टू यू, सी लेट मी, दिस इज़ वन टॉपिक दैट आई, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक टॉपिक डाल दिया, मैंने एक PDF दे दिया, ठीक है। अब वो PDF के बेस के ऊपर व्हाट इट विल डू इज, ये मुझे पहले तो समरी दे रहा है, अब मैं इसके अंदर और भी डाल सकता हूँ। सी दिस इज़ हायर एजुकेशन चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट, मुझे वीडियो मिला, मैं वीडियो भी ऐड कर सकता हूँ, मुझे मैम ने नोट्स दिए वो दे दिया, असाइनमेंट क्लास में किसी बच्चे का सबसे अच्छा असाइनमेंट था वो डाल दिया इसके अंदर, एंड इट कैन हेल्प मी क्रिएट अ स्टडी गाइड, अ ब्रीफिंग डॉक इज टिपिकली फॉर लॉयर्स की ब्रीफिंग डॉक चाहिए, स्टडी गाइड चाहिए। बट ऑल्सो व्हाट इज़ ब्यूटीफुल इज, सपोज मेरे पास ये सब नहीं है और मुझे रात को पढ़ना है, मुझे नींद आ रही है, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मेरे लिए इसी टॉपिक पे, जो मैंने टॉपिक दिया उस पर मुझे एक पॉडकास्ट बना के दे दे। नाउ सी व्हाट इट इज़ गोइंग टू डू, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ पॉडकास्ट फॉर मी फॉर द टेक्स्ट दैट आई हैव गिवन इट। मैंने सिर्फ ईयरफोन्स लगाए, रात को सोते हुए बैठ गया और उसको सुनता रहा इन सारी चीज़ों को। एंड देन अगेन द ब्यूटी इज़ कि वो आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और कॉन्वर्सेशन करते करते मेरे लिए मुझे फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ का, ठीक है। सो अगेन अ टूल, जब तक ये करता है मैं तब तक आपको एक दिखा देता हूँ, स्टडी गाइड दिखा देता हूँ। इट विल टेक टाइम गाइस, इट टेक्स टाइम बिकॉज बैक एंड पे आपका जेमिनाई 1.5 चल रहा है, इट टेक्स टाइम फॉर द AI टू प्रोसेस इट। सी इसने क्या किया, इसने उससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चन दे दिए कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। नाउ फॉर टीचर्स के लिए क्या है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बनाने हैं, ये बन गए, ठीक है। उसके आंसर्स हो गए। ऐसे टाइप क्वेश्चंस बनाने हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस बन गए। वेरिएंट भावना विल बी अ प्रॉब्लम अगेन मैथमेटिक्स, बट येस फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर कोई भी चीज़ सब्जेक्ट पढ़ने से पहले मुझे प्रॉम्प्ट करना है। कई बार क्या होता है कि मुझे ट्रेलर से मूवी के बारे में पता चल जाता है। जैसे अगर मुझे दिख रहा है कि अगर ये रोहित शेट्टी की मूवी है, मुझे दिख रहा है कि इसमें गाड़ियाँ उड़ रही हैं, नॉनसेंस है, मुझे पता है मूवी मुझे देखनी नहीं, तो मैं कई बार ट्रेलर देख के भी मुझे हिंट लग जाता है कि ये मूवी देखने लायक है या नहीं, ठीक है। सो सेम तरीके से कई बार क्या होता है, कोई सब्जेक्ट पढ़ने से पहले मुझे उसका ट्रेलर चाहिए, तो वो ट्रेलर आपको ज़रूर दे देगा। एंड देन वंस यू हैव ह्यूमन्स वर्क लाइक दिस, इफ़ यू हैव बीन इनिशिएटेड इन अ सब्जेक्ट देन इट इज़ मच ईजियर फॉर यू टू रीड इट। सो ये आपको क्वेश्चन दे देगा एंड देन यू कैन जस्ट गो क्रेजी विद रिस्पेक्ट टू दिस। देन आपको मैंने कहा इट माइट टेक अ फ्यू मिनट, जब तक ये फ्यू मिनट्स लेता है तब तक मैं आपको और एक दो टूल्स दिखाता हूँ फॉर AI। एम्यूलेट, नाउ सी दिस, व्हाट इज़ एम्यूलेट। नाउ एम्यूलेट क्या करेगा, एम्यूलेट और 11 labs इज़ अगेन समथिंग दैट आई विल शो यू। 11 labs क्या करता है, ये क्या करते हैं, ये आपकी वॉइस का एवेटार्स बना सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो है ये फ्री वर्जन है इसलिए, और मैंने अभी 5-7 मिनट पहले ही किया है, तो इसलिए इतना अच्छा वो ट्यून नहीं है। मैं उसको और भी लंबे सैम्पल्स दूंगा तो इट विल डू मच बेटर, एंड देन आई कैन कन्वर्ट इट इनटू मल्टीपल लैंग्वेज एज वेल। सी दिस। Papa, I am stuck in some place dark and they are saying they will kill me if you do not pay them the money tonight. Please give them what they want and do not call the police. ठीक है। नाउ दिस इज जस्ट विद एन अमेरिकन एक्सेंट जो अभी आ रहा है। आई हैड डन दिस, what I had done was, I'll show you what I had done. So emulate will basically create those chats for you, and यहाँ पर क्या है, मैंने स्क्रिप्ट देना है, मुझे अपना स्क्रिप्ट देना है, एम्यूलेशन देना है। से मुझे किसी का स्क्रिप्ट चाहिए। अगेन ये फ्री ट्रायल्स के ऊपर चल रहा है इस वक्त। द मोर ट्रेनिंग दैट यू गिव द बेटर इट विल बिकम, एंड हेजन जो है वो इवन बेटर है इस टर्म में, बट हेजन बहुत ही ज़्यादा महंगा है। नाउ यू कैन ऐड अ न्यू एम्यूलेशन, उसको आप टेक्स्ट दो, उसको पहले अपना वॉइस का सैम्पल दो। सपोज आपने यूट्यूब से किसी टीचर का आपको कोई चैट बनानी है, तो क्या किया आपने, से यहाँ पर लिखा दिव्या मैम का आपने कहा कि मुझे उनका बनाना है, उनका फ़ोटो डाला, ठीक है। यहाँ पर कहीं से फ़ोटो सब कुछ मिल जाता है। ऑडियो क्लिप्स आपको मैडम की मिल ही जाएंगी, ठीक है। तो आपने मैडम का डाला यहाँ ऑडियो क्लिप, और फिर एंड में डॉक्यूमेंट डाल दिया जिसमें अंदर आप उनसे कुछ भी बुलवा सकते हो उनकी आवाज़ के अंदर, ठीक है। सो दिस इज़ अगेन अ टूल दैट यू कैन यूज़, दैट यू कैन मिस यूज़ एज वेल।
सेम चीज़ अगेन आई शो यू कि हेजन करता है. हेजन गोज अ स्टेप फर्दर. इट कैन ऑल्सो क्रिएट वीडियो एवेटार, जिसको आप डीप फेक्स बोलते हो. डीप फेक के लिए वन ऑफ द बेस्ट टूल दैट यू कैन यूज इज दिस. लेट मी दिव्या मैडम इधर गई. दिव्या मैडम डर हाँ गए. सुन रही हूँ मैं, सुन रही हूँ मैं, डर भी नहीं हूँ. अगली क्लास में आवाज पहुंच जाएगी आपकी. एग्जैक्टली, आप नहीं पहुंचेंगे लेकिन आपकी आवाज पहुंच जाएगी. तो सो दिस टूल जो यूज़ करता है एवेटार वीडियोस. अब ये आपको जितने भी लोग दिख रहे हैं, ये दीज पीपल डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड. दीज आर ऑल पीपल जो एवेटार्स हैं. अगर आपने एक मूवी देखी हो, कंट्रोल रिसेंटली आई थी, तो उसके अंदर एवेटार्स आते हैं. ये एवेटार आप अपना खुद का क्रिएट कर सकते हो. यू कैन क्रिएट योर वीडियोज़. ऑल यू नीड टू डू इज़ गिव अ सेल्फी लाइक एवेटार और उसको एक ट्रांसक्रिप्ट दे दो, and it will do that in your this thing. Yes Gaurav, but at the same point of time you can't use Modi's picture. ठीक है. एक, जब आप पकड़े जाओगे तो बहुत अच्छे धरे जाओगे. दूसरा, वो आपको पब्लिक फिगर्स लेने ही नहीं देगा. ठीक है. तो पब्लिक फिगर्स को उनके पास ऑलरेडी वो है, एंड यू कैन नॉट मिस यूज़ इट. आई टेल यू वाई यू कैन नॉट मिस यूज़ इट. आपको ये दिख रहा है कि ये वीडियो चल रहा है, बट इसके पीछे जो आपको नहीं दिख रहा है इज़ कि किस IP एड्रेस से ये बना है, वो उसके अंदर एम्बेडेड है. तो अगर ये साइबर सिक्योरिटी वालों के पास जाता है तो आपको उसके पीछे का आपको दिख जाएगा कि ये कौन से इससे दिखा है. वो वाटरमार्क है, बट वो वाटरमार्क आपको दिख नहीं रहा है. तो यू कैन बी ईजिली ट्रेस्ड. तो जो एक फेमस हुआ था अभी ये डीप फेक, उसके अंदर भी ये वाटरमार्क होते हैं. वाटरमार्क से आप IP एड्रेस क्लियरली ट्रैक कर सकते हैं, और वैसे भी बहुत मुश्किल नहीं होता. एक बार आपने वीडियो सर्कुलेट करना शुरू किया, सो इट कैन ऑलवेज बी सीन कि विच इज़ द स्टार्टिंग सोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर say any kind of thing. So but this is again what I'm telling you, this is the future of education. कि जहाँ पर AI एवेटार्स हैं जो आपको हर चीज़ पढ़ा रहे होंगे, आपका सिर्फ इमेज देनी है, और यू विल नॉट एबल टू नो कि वो राइट वो जो बोल रहा है वो रियल इंसान है कि नहीं है. एंड दी फैक्ट कि जब आप उससे क्वेश्चन पूछोगे तो वो रियल टाइम में आपको आंसर भी दे देगा, बिकॉज इट हैज़ एक्सेस टू एवरीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज़ देयर. सो जस्ट ट्राई दिस टूल हेजन. आपके पास 1-2 क्रेडिट हैं. AI वॉइस वगैरह ये सारी चीज़ें यू कैन ट्राई, and just upload your voice and ask it to do anything that you want, and then you can use it for multiple this thing as well. Languages आपको किस तरीके से चाहिए वो भी आप कर सकते हो. I'll show you 11 labs भी same काम करता है. And then lastly I'll show you this thing, a tool called as Jenny, which is incredible for your research. मैं अभी research के अंदर जब मैं घुसूँगा तो मुझे पता है मैं Jenny बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ. ठीक है. 11 labs. Siddharth, can we analyze the tables and the graphs with any of these tools? टेबल्स एंड ग्राफ्स के लिए मैडम आप क्या कर सकते हो, परप्लेक्सिटी को मैथ वाला दे सकते हो, नहीं तो आज की डेट में ये भी कर सकता है. GPT का पेड वर्जन भी कर लेगा ग्राफ्स को एनालाइज. अगर मैं उसको टेबल दे दूं, हाँ, तो वो टेबल को मुझे एनालाइज बिल्कुल. और उससे भी बेटर करेगा मैम अगर आपके पास को पायलट है तो. माइक्रोसॉफ्ट के साथ में इनबिल्ट आता है, देखो ये को पायलट है. दिस इज कॉल्ड एज को पायलट. या अगर आपके पास ये वाला बेस सिस्टम है, विंडोज़ बेस्ड सिस्टम है, तो और ऑफिस आपके पास, तो ऑफिस के साथ में वो को पायलट है. को पायलट अगर आपका साथ में इंटीग्रेटेड आपने ख़रीदा हुआ है, तो जैसे ही आप एक्सेल खोलोगे, एक्सेल के अंदर को पायलट को इंटीग्रेट कर दो और उसी से पूछ लो कि इसके ऊपर टेबल बना दो, इसी को इंटरप्रेट कर दो, तो इट इज़ लाइक चैटिंग विद अ इंटायर टेक्स्ट. आप टेक्स्ट के साथ में, आप पूरे टेबल्स के साथ में चैट कर रहे हो. आपने रॉ टेबल दे दी, उसको बोल दो इसके अंदर से मुझे एनालिटिक्स निकाल के दे दे, इसका रिग्रेशन रन करके दे दे. ऑल ऑफ दैट इट विल डू इट यूजिंग को पायलट इफ़ यू हैव द पेड वर्जन. येस, को पायलट अभी बहुत अच्छा नहीं हुआ, बट को पायलट अभी भी ठीक है. और अगेन इट विल, ऑल ऑफ दिस विल इवॉल्व. अभी हमें 1.5 साल ही तो हुआ है इन सारी चीज़ों को लेके. सो Copilot आता है, but I haven't paid for it, so I think it is non-paid version. येस, यू हैव द नॉन, जस्ट लाइक मी, यू हैव द नॉन पेड वर्जन. वो ऑफिस के साथ इंटीग्रेट होता है मैम. फिर हाँ, non-paid में भी हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, बट अभी को पायलट हैज़ नॉट गेन दैट मच ऑफ आई मीन प्रोमिनेंस, आई वुड से. चैट जीपीटी में मैं नहीं कर सकती हूँ. I can upload the table and then पेड वाला चैट जीपीटी हम कहीं ना कहीं तो आप उसमें ट्राई कर लो. अगर हगिंग फेस लेता है क्या? हगिंग फेस लेगा नहीं शायद से, नहीं हगिंग फेस में नहीं लेगा.
एक एक करके आपको करना पड़ेगा मैम। आप उसमें ट्राई कर लो, परप्लेक्सिटी या क्लॉड अगर ले लेता हो तो फ्री वर्जन, सो यू कैन मे बी ट्राई दैट। ठीक है ना। 11 लैब्स क्या करेगा? 11 लैब्स आपकी टेक्स्ट को वो चेंज कर सकता है, डबिंग कर सकता है। वेरी वेरी ब्यूटिफुल थिंग इन डबिंग। इंग्लिश को उठाया एंड उसको डब कर दिया। आई हैड 11 लैब लॉग्ड इन। सपोज आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, कोई आपके पास वीडियो है जो इंग्लिश में है। आपको इंग्लिश सपोज मैं कहता हूँ नहीं आती, आज की डेट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 11 लैब्स में डबिंग का ऑप्शन है। जो भी आपका वीडियो है, आपको उसको हिंदी में अगर सुनना है, वो आप 11 लैब्स को रियल टाइम बेसिस वही कर देंगे। इनफैक्ट दिस इज़ नाउ बीइंग यूज। 11 लैब्स इतना ज़्यादा फेमस क्यों हुआ है? क्योंकि अगर आप देखिए इसके अंदर यूएन की स्पीचेस में देखिए, यूएन और आजकल जितने भी ये लाइव होते हैं उसमें लाइव ट्रांसलेशन चल रहा होता है। लाइव ट्रांसलेशन जैसे मोदी जी अगर हिंदी में बात कर रहे हैं, सामने स्पेन का से प्रेसिडेंट बैठा था, उसको स्पेनिश में वो पूरी की पूरी ट्रांसलेशन सुन रहा है। किसी की ट्रांसलेटर की ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की। सो ये डबिंग स्टूडियो जो है, ये क्या करेगा 11 लैब्स का? यू जस्ट गिव इट, पीछे बहुत सारी चीज़ें, सी क्रिएट अ न्यू डब, इम्पोर्ट, जस्ट इम्पोर्ट यूट्यूब वीडियोज़ एंड 29 लैंग्वेजेस में करेगा। आप इसको करो, से माई प्रोजेक्ट एंड डिटेक्ट लैंग्वेज, वो इंग्लिश में करेगा। एंड देन टारगेटेड लैंग्वेज से आपको हिंदी में चाहिए, एंड मैंने हिंदी करा। एंड यूट्यूब का बस आपको उसको वो देना है, से बैक, दिस इज़ माई यूट्यूब वीडियो। अब वो कहता है डिटेक्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स। इस केस के अंदर हमारे पास 2 स्पीकर हैं। अगर यूजली सिंगल स्पीकर हो तो वो है। सपोज़ मैं कहता हूँ कि मुझे पहले 2 मिनट ही चाहिए, 00 पहले 2 मिनट चाहिए, 2 आई वॉन्ट 00, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा नहीं तो। यू डोंट हैव इनफ, आई थिंक इट्स बिग इनफ, इट्स क्वाइट बिग इनफ टू अपग्रेड इट। I need a smaller project. Till that time, let's go back to our notebook. See this. Welcome back everyone to the deep dive. This time we're taking a deep dive into the fascinating world of Indian higher education. We've got some great material to work with today. Excerpts from the Routledge Handbook of Education in India. Voice नहीं आ रही? Plus a whole chapter from Philip To the location of new universities, to So you can just try it. Maybe there's a problem with the voice, that it's not taking the voice, I guess. Why is it? we can hear you very good. You can hear it? Okay. who gets appointed to key leadership positions. So how does that play out? Are we talking about Sadly, it can happen. Institutions become क्या सुन रही pawns हो in तुम? So अनिको को क्या सुनाई पड़ रहा है? अभी मुझे भी लगा उस वक्त कि मुझे अनिको ऐसा क्या सुनाई पड़ रहा है कि हमें नहीं सुनाई पड़ रहा है? Seriously. मुझे लगा सुनाई दे रहा है। सो बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि यहाँ पर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, एंड यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ ऑडियो वीडियो। मैं आप लोगों को भेज देता हूँ पब्लिक एक्सेस करके भी। एक्चुअली गूगल ने कुछ लोग ये जीमीट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं। अभी कोई भी आप ऑडियो को कुछ चलाते हो तो आपका वॉइस नहीं आता है, अच्छा यूट्यूब भी नहीं चलता। सो आई एम जस्ट शेयरिंग इट ऑन दिस थिंग। यू कैन जस्ट लिसन टू दिस एंड आपको मिल जाएगा नोटबुक LM पे। यू कैन जस्ट एंड देन आई वाज सी, अभी वो ट्रांसलेशन कर रहा है। एंड देन लास्ट आई विल शो यू वन मोर थिंग विच इज़ कॉल्ड जेना। ऐसे तो मैं आपको बहुत टूल्स बता सकता हूँ वीडियो जनरेशन के। रनवे LM, लूमा इज़ देयर, there's something called Kling which is very very good tool for generating videos. ये लूमा और सोरा से बहुत ज़्यादा बेटर आ गए हैं, टूल्स बन गए हैं। मेरे पास सजेशन है, यस, एक कोर्स स्टार्ट कर देते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ मैम, एक एक सब्जेक्ट के एक एक टूल के ऊपर बहुत सारे चीज़ें बन सकती हैं। तो कोर्स स्टार्ट कर देते हैं कॉलेज में बैक टू बैक। तो देखिए ये आ गया। ठीक है, मुझे तो लगता है कि हाँ। और उस समय मेरा ये ईमेल देखो। usp.com और ऐसा था जैसे दाहिनी तरफ कि usp.com बाईं तरफ से कभी pictures भी आ जाएंगे? किसी को सुनाई दे रहा है? नहीं सुन रहा सिद्धार्थ, नहीं सुन रहा, बट ये सुन रहा तो हम भी बात कर रहे हो। अच्छा, नहीं बात नहीं कर रहे होते। बट ये मैं आपको डाउनलोड करके ही आपको दे देता हूँ इसके ऊपर। बट ये अब हिंदी में बोल रहा है बाय द वे, सेम और चीज़। अब आप इसे छोड़ रहे हैं तो आप बाईं तरफ पर तो देखिए, आपने कोई भी चीज़ जो इंग्लिश में थी, जो आपको शायद से हिंदी में नहीं समझ में आ रही थी, वो आपने कन्वर्ट कर दी अपनी लैंग्वेज के अंदर।
एंड यू कैन डू इट. एंड बाय द वे ये रियल टाइम पे भी हो सकता है. रियल टाइम पे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, आपको इंग्लिश, स्पेनिश, हिंदी, पंजाबी, जो भी आपको लैंग्वेज करनी है उसके अंदर वो रियल टाइम में कन्वर्ट कर रहा है. सो अगेन समथिंग दैट इज़ वेरी यूजफुल. एंड लास्ट जो टूल मैं आपको बता रहा हूँ वो है जेनी. ये जेनी से जेनिफर एनिस्टन पे आ गया है. हमें जेनी चाहिए. दिस इज़ व्हाट वी वांट. नाउ जेनी का जो यूज़ है वो रिसर्च के अंदर, और फाइनल जो 4th ईयर है मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स के लिए, जो 4th ईयर है दैट इज़ गोइंग टू बी रिसर्च बेस्ड. उसमें आपको रिसर्च पेपर्स लिखने होंगे. तो दो तीन टूल्स आपको काफ़ी काम आएंगे. एंड एक टूल ऐसा भी है जो आपको बताएगा कि आपका जो टेक्स्ट जो आपका है वो कितना ज़्यादा AI जनरेटेड है, एंड यू कैन ह्यूमनाइज दैट टेक्स्ट एज वेल. सो देयर आर टूल्स जो आपने ChatGPT से निकाला. ChatGPT से जो आपने आउटपुट निकाला उसके साथ में क्या हुआ कि वो सबका आउटपुट सेम ही है. मैं ChatGPT से असाइनमेंट कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, सबका असाइनमेंट सेम ही आ रहा है अनटिल अनलेस आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूज़ कर रहे हो. प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूज़ करने के बाद भी प्रॉब्लम ये होगी कि अगर मैं उसको टर्निट इन से करूँगा तो वो मुझे दिखा देगा कि यहाँ से कॉपीड है. देन देर आर टूल्स टू ह्यूमनाइज योर AI कंटेंट, और फिर वो आप उसको फिर आप पेस्ट कर सकते हो. ठीक है. नाउ से ऐसे ऑन ग्लोबल वार्मिंग है, एंड ये ऐसे ही लिख रहा है, बट मुझे क्या चाहिए. दिस इज द लास्ट टूल गाइस, जस्ट गिव मी 1 second. से I want to write say on debt cycles in India and state-wise debts, and I'll show you कि वो PhD लेवल पे भी जाएगा. I say accept, वो आगे लिखना शुरू करेगा. हाँ देखो ना, द नेक्स्ट उसने लाइन दे दी, एंड इट इड ऑल्सो सेड कि वो कहाँ से, यही हमें चाहिए होता ना कि वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम. I can do try again as well. I can do multiple things. Similarly, आप literature से, now it has changed this. I say accept. Then say literature review चाहिए मुझे. So it can also give me literature review as well. And then वो पूरा का पूरा आप article इस हिसाब से पूरा का पूरा आप modify करके लिख सकते हो. Again a paid tool that is there. वो धीरे धीरे text generate करना शुरू कर रहा है. But result, methodology, discussion, all of this can be, see, it has started doing it. So it will take time, but it will generate a good paper for you, and then you can again modify. इसको आपने एक वो कर दिया, फिर इसको humanize कर दिया, and then run it through a plug check. कोई भी आपका plagiarism वाला सॉफ्टवेयर उसके अंदर चेक कर लो, फिर उसके बाद उसको एडिट कर लो. So this is a new tool that you can use in your 4th year. I'm doing more of analysis on this. मैं इसका भी पेड वर्जन लेने वाला हूँ, and once I do a good analysis on this, then I can tell you कि अच्छा आप उसको और कैसे optimize कर सकते हो. Any questions if you want to ask any questions with respect to इसमें रिसर्च का ये रेफरेंस कैसे आ रहा है? ये वहीं जैसे GPT उठा रहा है मैडम, वैसे उठा रहा है. वो देखो GPT तो रेफरेंस नहीं उठाता जल्दी. नहीं, रेफरेंस भी उठा सकता है. डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर उससे कैसे वो कर रहे हो, वो आपको रेफरेंस भी देता रहेगा. वो बहुत जनरल रेफरेंस देता है. यहाँ पर आपको यहाँ पर इट इज़ एक्चुअली अ रिसर्च बेस्ड टूल, तो आपको यहाँ पर रेफरेंसेस वो ठीक से देगा. नैरेटिव चेंज कर सकते हो आप इसका. सो ऑल ऑफ दैट इज पॉसिबल हियर. ह्यूमनाइज करने के लिए कौन से बताए AI टूल? ह्यूमनाइजिंग टूल्स 2-3 टूल्स. नहीं आता. I'm forgetting the name of the, नहीं क्विलबॉट तो कर सकता है. सी यहाँ पर वो आप वो करो, आप अपना टेक्स्ट पेस्ट करो, एंड यहाँ पर वो आपको पैराफ्रेज कर देगा. एकेडमिक करना है, फॉर्मल करना है, इनफॉर्मल करना है, वो ऑल ऑफ दैट अगेन पेड टूल्स आर देयर. देयर इज वन मोर टूल, आई एम फॉरगेटिंग दी नेम. वो आपको वो भी दे देगा कि कितना आपका कंटेंट जो है, वो GPT है या AI ड्रिवन है. ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल. क्विलबॉट भी तो यही करता है सिद्धार्थ. क्विलबॉट भी यही करता है. इट पार्सेस इन फॉर्म ऑफ योर लैंग्वेज. आप अपनी लैंग्वेज के फॉर्म में भी कर सकते हो. इनफैक्ट व्हाट यू कैन डू इज़, मैं इसके साथ एक वर्जन ट्राई कर रहा था ChatGPT के साथ में. सपोज़ मुझे कोई ऑथर पसंद है, ठीक है, से मुझे कोई राइटर पसंद है जो बहुत अच्छा लिखता है. मैंने सारे एग्जाम्पल्स जो, जैसे मैंने बताया था ना कि हम उसको ट्रेन कर सकते हैं, GPT को ट्रेन कर सकते हैं, उसके अंदर मैंने सारे आर्टिकल्स उसके डाल दिए, एंड देन मैंने जो लिखा है वो डाल दिया, एंड देन आई आस्क्ड इट टू राइट इट इन दैट प्रोज. तो
तो वो सेम उसी लैंग्वेज में उसी तरीके से उसको कन्वर्ट कर देगा. दैट इज़ अनदर वे. सो these are you can use humanize AI as well. I think दो और tools हैं जो मैंने देखे हुए हैं. This is one that I've seen. दो और हैं. One of them is very famous. मैं उसका नाम बोल रहा हूँ. Cover letters, yes you can apply, but again उसको ठीक से करना कि आप किस तरीके से कर रहे हो. It can generate pseudo code or workable codes. Workable codes, I think Claude is amazing for coding. Claude बहुत अच्छा है, and GPT paid version is also not bad. It can do a lot of work. Assistant, AI assistant Monica, I've not used it. I'll try it. What I'll do is I will share a group. I think Honey, if you can just make a WhatsApp group and share the link with everyone and ग्रुप बना होगा ना इसी वर्कशॉप वाले. हाँ, इसी वर्कशॉप का भी ग्रुप बना होगा. उसका लिंक इधर डाल दो. एंड व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं जितने भी अपडेट्स आते रहेंगे इसके अंदर मैं आपको देता रहूँगा कि ये नए टूल्स आ रहे हैं, ये इनका हैक है. एंड अगर आपको 3-4 लोग अपने आसपास मिल जाते हैं टू कोलैबोरेट ऑन अ पर्टिकुलर टूल, देन गुड, यू कैन यूज़ देम फॉर फ्री. और टीचर्स को सर को हमको भी ऐड कर दो उसमें, ठीक है. Yes, sir, we have a group. I'll add you all. ठीक है. और इसका ग्रुप का जो लिंक है वो शेयर कर दो, यहाँ पर भी शेयर कर दो इन दी चैट. एनी अदर क्वेश्चन दैट यू माइट हैव? किसी को कोई क्वेश्चन हो? आई होप इट वाज इंटरेस्टिंग. Very interesting. यस. तो अभी तो मतलब मेरे पास बहुत सारे टूल्स थे और करने के लिए. नहीं सिद्धार्थ, एक वो प्लान बनाओ. एग्जैक्टली बीबीए के अंदर भी हो सकता है. तो यू हैव द होल बीबीए के अंदर हम एक कोर्स लॉन्च कर देंगे. मैडम मैं यही सोच रहा था कि किसको बता रहा था कि मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा था, फिर मैंने फाइनली नहीं बनाया. कि सपोज दिव्या मैडम को अगर किडनैप कर लिया जाए तो दिव्या मैडम उस टाइम पे भी यही बोलेंगी. उस टाइम पे भी किडनैप होने के बाद भी मैम यही बोलेंगी कि बीबीए के लिए कुछ बनवा दो. आता रहेगा, कोर्स चलता रहेगा. बट नॉट आवर क्लास विकसित भारत अभियान ठीक. हमारा ये अभियान एकदम सक्सेसफुल हो जाएगा और थोड़ा सा बच्चे भी विकसित हो जाएंगे और टीचर भी. ठीक है. बट अगेन I guess let's take few questions quickly and then group में जब सर ऐड हो जाएंगे तो you can keep asking as a follow up. एंड प्लीज वेट फॉर आंसर्स. मैं हर 2 हफ्ते में एक बार व्हाट्सएप चेक करता हूँ, तो यू हैव टू वेट फॉर 14 जब ट्राई करेंगे तब ज्यादा क्वेश्चंस आने का सब हाँ. चांस है ना. अभी क्या पूछना. यस. मतलब लिख लो सारे टूल्स. मैं आपको बहुत सारे और टूल्स बता दूंगा. हर चीज़ के लिए आपके पास मल्टीपल टूल्स हैं. तो एंड एक और चीज़ दिखा देता हूँ. अगर आपको कन्फ्यूजन है कि टूल्स कौन से यूज़ करने हैं, मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ. देयर इज़ एन AI फॉर दैट. बस इस वेबसाइट पे चले जाओ. इस वेबसाइट का नाम ही यही है, देयर इज़ एन AI फॉर दैट. जो आपको काम करना है उसके लिए आप टूल ढूंढ लो. सर आपको वीडियो टूल बनाना है, आपको ऑडियो टूल बनाना है, जो भी आपको टूल चाहिए, जिस काम के लिए आपको टूल चाहिए वो यहाँ लिख दो कि मुझे इस काम के लिए चाहिए. वो आपको टूल दे देगा. मैथ्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, कुछ भी पढ़ना है. जो मीम जनरेशन देखो यहाँ पर जितने भी टूल्स हैं वो सारे टूल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं. इस वेबसाइट का नाम है देयर इज़ एन AI फॉर दैट. सो अ लॉट ऑफ दिस इज मतलब सेल्फ लर्निंग बेस्ड है बहुत कुछ. क्वेश्चंस? एनी अदर क्वेश्चन? अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो Girls, please unmute and raise the question quickly. We will wind up then. That's all those questions before now. और जो लग रहे हैं ऐसे क्वेश्चन जो अभी पूछने की जरूरत है वही पूछ सकते हैं. I would suggest wait until you try out. Hands on करोगे तो शायद ज्यादा फायदा है. कुछ ऐसे सवाल जहाँ अटको तो पूछो. वेरियस इनसाइट्स है. सी साइबर थ्रेट का ये मैंने आपको बता दिया कि जो नए तरीके के आपके जो साइबर क्राइम्स होंगे उसके अंदर आपकी वीडियो जो होगी वो हो जाएगी. सपोज आप ये वीडियो है मेरे पास, मेरा यूट्यूब है, मेरे यूट्यूब पे बाय द वे दिस विल बी देयर ऑन माय यूट्यूब. तो मेरे यूट्यूब पे मेरी वॉइस है, मेरे यूट्यूब पे मेरी शक्ल है. कितना टाइम लगता है मेरा डीप फेक बनाने में? कोई टाइम नहीं लगेगा. कुछ भी बना लो मेरे डीप फेक से उस टाइम पे. मैं पब्लिक फिगर नहीं. Even they have to log in and do it ना, so they have to provide them their information even to create login and something. देखो वी आर हम सारे के सारे डिजिटल स्पेस में तो चल ही रहे हैं ना. ये तो इन्फॉर्मेशन तो हाँ. तो आप ये कर सकते हो. एक नॉर्मल एक और ईमेल बना लो, एक ईमेल इस काम के लिए जिसके लिए आप ये सारे काम कर रहे हो. यू कैन डू दैट. बट अगेन लेट मी टेल यू दैट इट कैन बी ट्रेस बैक टू योर IP एड्रेस. कोई इलीगल काम करने से पहले ये सोच लेना कि वो IP एड्रेस ट्रेस बैक हो जाएगा. बट
ma'am, I'm warning you that this is going to be the future of your crimes as well. दी डिजिटल क्राइम्स जो होंगे आज की डेट में, आपके पास फ़ोन आता है, ओटीपी वाले प्रॉब्लम होते हैं, साइबर अरेस्ट होते हैं. हमारी एक मैडम है हिस्ट्री में जो साइबर अरेस्ट हो गई थी, अभी नाम नहीं ले रहा हूँ मैं. ठीक है. तो बट बट द न्यू काइंड्स ऑफ क्राइम्स दैट विल बी देयर, वो सारे के सारे एआई बेस्ड होंगे. होंगे, आप बिल्कुल सही कह रहे हो. तो यू शुड. ऐसा क्या हो गया था कि वो अरेस्ट हो गई थी? अरे बस बस. अरेस्ट नहीं, डिजिटल अरेस्ट. डिजिटल अरेस्ट. डिजिटल अरेस्ट बहुत ज्यादा आजकल है यार. हाँ. ठीक ठीक है. बनाते हैं वो और बंदा इतना डर जाता है कि कुछ करता ही नहीं है, बस उसी की सारी बातें सुनता है. चलो ठीक है. That can be another workshop agenda, how to escape from digital arrest. Yes, 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 yes. We don't receive these kind of calls. चलिए ठीक है बच्चों. I think they are also leaving now. Yes. They would try out and then they may come back on the group. Sir will be there at the mentor. तो जहाँ लगेगा आपको कि जरूरत है सर से एडवाइस देने की, you can go. फीडबैक फॉर्म हमने भरवा लिया. circulating that. ग्रुप भी कर लो, फीडबैक भी करवा लो. हाँ. So who is going to wind up now? Everyone, please switch on your camera. Yes, sure. और बच्चे फोटो के लिए बहुत सारे टाइल्स नजर आ रहे हैं. Teachers, students, everyone. Quickly, just for a minute. कैमरा ही ऑन नहीं हो रहा. Glitch. मैंने अपनी क्लास होल्ड कर रखी है. मैंने कहा ये खत्म हो जाएगा उसी वक्त फिर दोबारा लूंगी क्लास. 1 घंटे लेके इधर आ गई मैं. 1 घंटे अभी फिर लूंगी. हाँ चलो ठीक है. स्टूडेंट्स नाउ वाइंड अप वाले बच्चे प्लीज. हाँ, टेक ऑन. Shinia, please do the vote of thanks and we can wind up then. फीडबैक ऑफ चैट बॉक्स में भेजो. ये वीरेंद्र सिंह कौन है? Shall I start with the vote? किसी वीरेंद्र सिंह ने ज्वाइन कर रखी है मीटिंग. Good afternoon, everyone. I'm delighted to express my vote of thanks on behalf of the Artharishti Economic Society in collaboration with the Viksit Bharat Secretary and IQAC for organizing this insightful workshop on AI for Gen Z. I would like to express my sincere gratitude to our distinguished resource person, Siddharth Rathod sir, Assistant Professor, Department of Economics at MSCW, for enlightening us with this profound knowledge and engaging presentation. Your insights into the transformative role for generative AI for Gen Z have developed new avenues of thought and innovation for all of us. My appreciation goes to the organizing committee, professors and all the participants for their active involvement in today's session. Let us embrace today's learnings and harness the power of AI for a brighter future. Thank you.